پچھلے چند خطبات جو تھے وہ ہماری اصلاح پر مشتمل تھے کہ خاندانی اصلاح کیسے ممکن ہے، خاندانی نظام کو مضبوط کیسے کرنا ہے، گھروں کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے، بنیاد مضبوط کریں، تعلقات مضبوط کریں، اور پھر خاندان کے اندر جو اللہ نے تقسیم رکھی ہے کہ والدین ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی ایک بہت بڑی اصلاح پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ نعمت ہے، ہوتی ہماری آزمائش ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ موقع نہیں دیتا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا معاشرے میں کہ مجھے فلاں وقت موقع ملا تھا، میں نے ضائع کر دیا۔ اللہ موقع سب کو دیتا ہے، کوئی سنبھال لیتے ہیں، کوئی نہیں سنبھال پاتے۔ تو اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں، یار میں نے بڑا موقع ہاتھ سے گوا دیا، بس مجھ سے اس وقت ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آج میں یہ خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ اگر فائدہ اٹھا بھی لیں پھر ایک آدھی نسل تک تو مسئلہ ٹھیک رہتا ہے، پھر بعد میں اٹھان بڑی اچھی ہوتی ہے، نیا پیسہ آتا ہے، اٹھان دنیا دیکھتی ہے، ماشاءاللہ اے منڈے ترقی کر رہے ہیں، یہ خاندان نیچے سے اوپر آ رہا ہے، اٹھان بڑی اچھی، یکدم انسان اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اللہ نعمتیں جب دے رہا ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان نعمتوں کو سنبھال نہیں پاتے، قدر نہیں کر پاتے، نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ ابن خلدون بابا عمرانیات کہتے ہیں، یورپ میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مقدمہ ابن خلدون بڑا مشہور ہے، باہر کے ملکوں میں سیاستدان اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے اگر ایک بندہ محنت کر کے زندگی میں صحیح طرح 18 گھنٹے دن میں محنت کر کے 15 سال اگر ایک بندہ کما لے، 3 نسلیں اس کی بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ اور پھر جو آج ارب پتی خاندان ہیں، بادشاہت چل رہی ہے یا فیکٹریوں ملوں کے مالک ہیں، پوچھا کہ ان کی کیا وجہ ہے، ان کی تو 7 نسلوں میں ختم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک نسل کماتی ہے، دوسری نسل سنبھالتی ہے، تیسری نسل بڑھاتی ہے، اس لیے 7 نسلوں تک پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، نعمت آتی ہے سنبھال نہیں پاتے، نعمت آتی ہے شیخیاں شروع کر دیتے، نعمت آتی ہے پیسہ آتا ہے نیا نیا اجاڑنا شروع کر دیتے، ضرورت نہیں ہے خواہشات کے لیے۔ موقع سب کو ملتا ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا اس کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے اگر تو میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا میں اللہ تجھے زیادہ دوں گا۔ یہ قرآن کی نص ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تو نے نہ شکری کر دی، ہے ہی کوئی نہیں کھان واسطے، پلے ہی کچھ نہیں میرے کول، میرے پاس ہے کیا، اگر تو نے نہ شکری کر دی، انسان پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں اللہ جو دیتا ہوں نا وہ چھین بھی لیتا ہوں، پھر میں نشکری کی سزا ضرور دیتا ہوں۔ ہاتھ تیرے پاس تھے، تو نے شکر ادا نہیں کیا۔ ہاتھوں کا ایک شکر یہ تھا اللہ کو کہ اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے، بڑی دنیا ایسی ان کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے نا ہاتھ دیے، ایک شکر یہ ہے ان ہاتھوں کا استعمال کر، ان ہاتھوں کو فضول غلط جگہ پر لگانا، ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا، یہ بھی ناشکری ہے۔ آنکھیں دی تھی، شکر یہ تھا ان آنکھوں کے ساتھ اچھا استعمال کر کے بچوں کے لیے اچھا کما، اپنے لیے اچھا کر لے، اگر ان آنکھوں کا پھر استعمال برا کروں یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر، شکر کرنا کیسے آتا ہے؟ وہ شیخ سادی والا کے ساتھ بازار میں جا رہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، شکوا کر دیا، اللہ میرے پاس دیکھ تیرا بندہ نیکی تقویٰ، جوتا نہیں، آگے گئے تو کیا دیکھا، بندہ بیٹھا ہے دونوں پاؤں ہی نہیں ہے، اور وہ پھر بھی سجدہ کر کے شکر ادا کر، اللہ تو نے جان تو دی ہے نا، جسم تو دیا ہے نا، دھڑ تو دیا ہے نا، پاؤں نہیں دیے تو کیا مسئلہ ہے؟ شیخ سادی سجدے میں پڑ گئے، رونا شروع کر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے، جوتے پھر آ جائیں گے۔ نہ شکری کی کیفیتوں کو گھر سے نکالے اگر سکون چاہتے ہیں۔
ہمارے گھروں میں ناشکری، 5-5 10-10 ہزار کے باہر کھابے اکھاڑ لیں گے ہم لوگ، دوستوں کو کھلا دیں گے، یاشیاں کر لیں گے، لیکن پھر آگے آ کر کے رونا شروع کر دیں گے. ساڈے کول تو ہے ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے ملوں میں افسر ہیں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، گھر میں پوری نہیں پڑتی. فیکٹریوں کے مالک ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کماتے ہیں، ہماری تو پوری نہیں پڑتی. اللہ اکبر. اور دوسری طرف کیا ہے، وقت کا امام گزر رہا ہے اور کیا دیکھا کہ ایک دھڑ ہے، صرف دھڑ، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا اس دھڑ کا. اللہ اکبر. اور زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یار تیرے پاس ہے کیا جو تو ذکر کر رہا ہے اور شکر کر رہا ہے؟ اس نے کہا ذکر اور شکر اس لیے کر رہا ہوں، وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا خَاشِعًا، اس لیے شکر کر رہا ہوں. اللہ کا اس نے زبان دی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، دل دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں دیا، زبان تو دی ہے نا اللہ نے، تو شکر کیوں نہ کروں اپنے اللہ کا. ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آسمان سے منصلوہ اترے گا. دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر آپ اٹھائیں، نیٹ پہ جائیں، آپ حیران ہوں گے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے، اور اس کی ایک صرف اس کا لیکچر لینے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں، صرف ایک لیکچر لینے کے لیے. وہ آپ کے بر صغیر میں کبھی نہیں آیا، وہ آ سکتا ہی نہیں، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اس نے کہا جب میرے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، دنیا مجھے لاچار سمجھ رہی تھی، بے بس سمجھ رہی تھی. میں نے کہا یار ہاتھ پاؤں والے تو سارے ہی کام کرتے ہیں، میں دنیا میں ثابت کر کے دکھاؤں جس اللہ نے تمہیں یہ ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، ہاتھ پاؤں نہیں بھی دیے، اگر تم اس ذہن کا صرف استعمال کر لو تم دنیا پر حکومت کر سکتے ہو. اس نے ثابت کر کے دکھایا ہے. ہم لوگ ناشکریوں میں پڑے ہوئے ہیں. اتنا ناشکراپن ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے دوستوں میں. یہ ناشکراپن اپنی زندگیوں سے نکالے. جب ناشکری آتی ہے اللہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے. نوح علیہ السلام ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہیں تو بندے مومن پر شکر کوئی نہیں کرتے. بڑے تھوڑے بندے ہیں میرا شکر ادا کرتے ہیں، نمازیں سارے پڑھیں گے، روزے سارے رکھیں گے، زکات بھی دیں گے، اور پہلی صف کے، دوسری، تیسری، چوتھی صف کے نمازی بھی 5 وقت کے ہوں گے، لیکن فرمایا مسئلہ کیا ہے، شکر ادا نہیں کرتے مجھے اللہ کا. نوح علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، میرا نوح شکر گزار بندہ تھا، شکر گزار. ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا پانی یا دودھ اور چند کھجورے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے قرآن اٹھایا، قرآن کے اندر اللہ نے شاکر لانعمی. ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، ابراہیم تو میری نعمتوں کا شکر ہی بڑا ادا کیا کرتا تھا، اور ہے کیا پاس، بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہم نے کرنا کیا ہے، ابراہیم تو جا رہا ہے، یہاں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، یہاں کوئی سائبان نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی درخت نہیں. ابراہیم اتنی بیابان وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے قرآن اتار دیا، شاکر لانعمی، گھر کی چھت نہیں تھی ابراہیم شکر ادا کرتا تھا. آج گھروں کی چھتیں ہیں، آج پلازے ہیں، آج فیکٹریاں ہیں، آج دکانیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سانسیں جسم میں چلتی ہیں، خون جسم میں دوڑتا ہے، ہسپتال کے وینٹیلیٹر پر نہیں پڑے ہوئے ہم لوگ. شکر نہیں ہے زبان پہ، نہ شکری ہی نہ شکری ہے. جس کو اٹھا کے دیکھیں ہر طرف ایک ہی بات ہے ہی کچھ نہیں جی، مر گئے جی، بس ہونے جنازہ پڑے جانا ساڈا جی. کیا ہو گیا یار، جب نہ شکری کرتے ہو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں حضور نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا. ایک گنجا ہے، ایک کوڑی ہے اور ایک اندھا ہے. کوڑی کے پاس فرشتہ آیا، کیا چاہتا ہے، کہنے لگا یہ کوڑ کا مرض دور ہو جائے، گندا سا لگتا ہوں یار. اس نے ہاتھ پیرا، مرض دور ہو گیا. اس نے کہا چاہتا کیا، اس نے کہا اونٹ مل جائے. اس نے حاملہ اونٹنی دے دی اسے. گنجے کے پاس گیا، کیا چاہتا ہے، کہتا بال آ جائیں. اس نے ہاتھ پیرا، بال آ گئے. کیا چاہتا ہے، کہتا گائیں دے دو. حاملہ گائیں دے دی. تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا، تو کیا چاہتا ہے، کہنے لگا یار آنکھیں آ جائیں نا کبھی. اس نے ہاتھ پیرا، آنکھیں آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا تینوں کے پاس، اس سے پوچھا چاہتا کیا ہے، کہنے لگا ایک بکری چاہتا ہوں. حاملہ بکری دے دی. اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی. تو اور میں جب پیدا ہوئے تھے گھر سے لے کے آئے تھے، ماں کے پیٹ سے کچھ لے کے آئے تھے. یہ لباس پہنا ہے کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. ماں کے پیٹ سے میں ننگا باہر آیا تھا، مجھے بھول گیا ہے.
मां के पेट से जब मैं बाहर आया था, हमें याद होना चाहिए, जुबान थी, लफ्जों की हुर्मत से आशना नहीं थी। हमें याद होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, जब मां के पेट से बाहर निकले थे, दोनों हाथ थे, पकड़ नहीं सकते थे, पांव थे, चल नहीं सकते थे, दिमाग था, सोच नहीं सकता था, कान थे, सुन नहीं सकते थे, सुनते थे, समझ नहीं सकते थे। जब मां के पेट से मैं बाहर आया था, जिस्म के सारे आजाद सही सालम थे, काम नहीं करते थे। आज मैंने शुक्री किस बात पे करता हूं? ये कपड़े पहनने, ये वेस्टकोट पहननी, हाथों को कर देना, पांव पे चल के आना, आंखों से देखना, कानों से समझना, दिमाग के अंदर सोच फिक्र का आना, दिल का इस्लाह करना। जब मां के पेट से निकला था इंसान, तब गौर फिक्र करना। तू दूध नहीं मांग सकता था अपनी मां से, अल्लाह ने दिया तुझे, आज तूने शुक्री करता है, तेरे पास है ही कुछ नहीं। अपनी आंख निकाल के बेच जरा, 1 अरब रुपए की आंख नहीं बेच सकता तो तू अंधा हो जाएगा। अपने पांव उतार, इसे बेच के दिखा। तुझे कोई 10 करोड़ भी दे तो अपने पांव नहीं बेचेगा कि मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। ऐसे है कि नहीं है? उस रब का कितना शुक्र अदा किया हमने, ये अलग मौजू है, शुक्र अदा कैसे करना है। अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी, कोड़ी के पास ऊंटों की वादी आ गई, गंजे के पास गायों की वादी आ गई, और अंधे के पास बकरियों की वादी आ गई। फरिश्ता फिर आया कोड़ी की शक्ल में और आके कहा कि यार मैं कोड़ी हूं, मैं मरीज हूं, मुझे कुछ दे दे, तुझे याद है कि तू भी कोड़ी था। आगे से कहने लगा ये ऊंटनियां तो मेरे अबाव अजदाद की ऊंटनियां हैं, मैं तो कोड़ी नहीं था, तू झूठ बोलता है। आज जातें बदल ली जाती हैं। कोई कहे ना जी कल को तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, आज अल्लाह ने दिया है तो देते क्यों नहीं। आगे से जुमला क्या आता है, ओ साडे बावजदाद राणे लह, साड़ियां तो मिलना चल दिया सी, साड़ियां तो लूमा चल दिया सी। यही हाल उस कोड़ी का। कहने लगा मेरे पास तो पहले से था, तू झूठ बोलता है। फरिश्ते ने बद्दुआ की, अल्लाह ने फिर दोबारा कोड़ी करके सारा माल वापस ले लिया। अंधे के पास गया, गंजे के पास गया, उसने भी यही कहा। कहने लगा उसी जद्दी पुश्ती अमीर, मालदार, पैसा दौलत, हम गरीब थे, तू झूठ बोलता है। फरिश्ते से कहने लगा, फरिश्ते ने उसे भी क्या किया, बद्दुआ की, हर कुछ सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। फिर दोबारा गंजा हो गया और तीसरे के पास गया, नबीने के पास। कहने लगा यार मैं बेचारा नबीना, मरीज, कुछ नहीं मेरे पास, मुसाफिर हूं, कुछ दे दे। आगे से नबीना कहने लगा 1-2 बकरियों से तेरा क्या बनेगा, सारी की सारी वादी तेरी है, जितनी चाहे बकरियां ले जा। मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, एक वक्त था कि मैं अंधा था, मेरे अल्लाह ने मुझ पे रहम किया, मुझे आंखें दे दी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, अल्लाह ने बकरियां दे दी। आज जब अल्लाह ने दिया है तो तू मांगता क्या है, सारा ही तेरा, तू ले जा भाई। फरिश्ता कहने लगा तू कामयाब हो गया, बाकी सारे नाकाम हो गए। अल्लाह के बंदे, आसमान के रब ने मुझे भेजा था तेरी आजमाइश करने के लिए। मैं और आप सोचें, हमारी नेमतें, हमारी आजमाइश तो नहीं है कहीं, हमारी आजमाइश तो नहीं हो रही। हम कहां पे खड़े हैं, हम अपने अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। मैं जिस सीट पर, जिस मस्जिद पर बैठा हूं, मैं रो तो नहीं रहा, अल्लाह को इल्जाम तो नहीं दे रहा, अल्लाह ने कुछ दिया नहीं मुझे। अब घरों के अंदर मसला क्या है, यह समझने वाली बात है। हमारे घरों में हम लाखों कमा के ले जाएं, करोड़ों कमा के ले जाएं, हमारे घरों में मसला यह है, खुदा के लिए, ये जो मैंने पिछले जुमे पढ़ाए थे उसी जुमे की एक कड़ी है, खुदा के लिए अपने घरों में अपनी औरतों को नाशुक्री से बचाओ। मां है, माजरत के साथ हमारे घरों में माएं हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, बहनें हैं, ये चारों रिश्ते नाशुक्रियां, अपने घरों में इस नाशुक्री को दूर करें। अगर घर के अंदर खजानों की बरमात चाहते हैं, अगर घर के अंदर चाहते हैं रिज़्क़ में इजाफा हो, औलाद फरमा बरदार हो, मेरे घर के अंदर सुकून हो, अमन हो, मां है तो वो भी नाशुक्री है। मेरे बेटे मुझे पूछते ही नहीं, गली मोहल्ले में हर दूसरे घर में जाके मेरे बच्चे मुझे कुछ देते ही नहीं, सारी कमाई ला करके बच्चा मां की तली पे रख रहा है और मां दर दर पे जाके जलील कर रही, मेरा बेटा तो मैनू देंदा ही कुछ नहीं, पता नहीं किथे वाड़ी जाता है, पता नहीं क्यों दी जाता है। ये नाशुक्री मां है। इस घर के अंदर आप करोड़ों कमा के ले जाएं, रहमत नहीं आ सकती। माजरत के साथ ऐसी मां नाशुक्री मां है जो अपनी औलाद के बारे में दूसरे घरों में जाकर के दुनिया को बताए, मेरे बेटे ने शादी पे मुझे कपड़े नहीं लेके दिए,
सर्दी च मैनू जुत्ती नहीं लैके दी, मैनू चादर नहीं लैके दी। बंदा पूछे मां से, जी तू पहना है तूने या किसने लेके दिया तुझे? आप कमा के लाई है तू? इस शुक्रेपन को दूर करे घर उसके अंदर। जिल्लत ये वाली अपनी माओ की तरबियत करे। मां जी, अल्लाह जहां ना शुक्री होती है रिज़्क़ छीन लेता है। मां तेरी मुंह से दुआ निकलनी चाहिए, रहमत के अल्फाज निकलने चाहिए। और आप मर्दों के लिए देखें, हम मर्द हैं और मर्द क्या होता है, आज माजरत के साथ सरमाया दराना निजाम है। आप मर्द है ना, आज उस दादे की इज्जत है जिसके पास पैसा है, आज उस चाचे की इज्जत है जिसके पास पैसा है, आज भांजे उसको मामू कहते हैं जिसके पास पैसा है, आज उस भाई की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये पैसा कभी औरतों के हवाले ना करें, अपने पास रखें, आपकी इज्जत तभी होगी। अगर हम घर में पकड़ा दें मां जी को, फिर दोबारा पूछने मां जी कहां लगाया, आगे से गुस्सा कर जाएगी हमारी मां। तू पूछने वाला कौन होना है, तेरे प्यो ने कितने नहीं सी पूछा। आप तारीख उठा के देखें, हाँ मां जी, जिस बाप ने कभी नहीं पूछा था, आज उस बाप का हाल तो देखो बेचारे का। एक एक रुपए को मेरा बाप तरस रहा है। मां, और तू घर में प्रधान और चौधरी चुधरानी बन के बैठी है, तूने बाप का हाल क्या कर दिया है जो मैं नहीं पूछूं तेरे से। बेचारा मर्द है, पूरी जिंदगी कमाएगा, पहले मां के हाथ पे रखेगा, मां जी मां जी मां जी। बीवी आएगी, उसके नखरे, बीवी बीवी बीवी, फिर बच्चों के नखरे, फिर बेटी बड़ी हो जाएगी, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उठाएगा, अपनी बेटी को ब्याहने पे लगा देगा। ये मर्द बेचारा इतना मजलूम है। अब फिर दुनिया कहती है जी मर्दों ने किया क्या है। घरों को ना शुक्री से बचाएं। जब तक ये काम नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम है, आप करोड़ों कमा के ले जाएं, आप लाखों का बिजनेस कर लें, आपके घरों में खैर नहीं आ सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने खुतबा दिया औरतों को, या अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया खवातीन से सदका किया करो। मैंने जहन्नुम में देखा है सबसे ज्यादा औरतें, औरतों की कसरत देखी। औरतों ने कहा अल्लाह के नबी, हमने कौन सा गुनाह कर लिया है, आपने तो हमारे ऊपर ही बात कर दिया, हमने कौन सा गुनाह कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मसला ये है कि तुम तकफुर नलाशीर, तुम अपने खामदों की नाफरमानी करती हो, ना शुक्री करती हो, इस वजह से सबसे ज्यादा मैंने जहन्नुम में देखा होते हैं। बीवी को देख लें, ना शुक्री। बीवी की अलामत क्या है, मैं अपने घर में थी, मेरा बाप पता नहीं क्या कुछ था, मेरे बाप मुझे ये भी ला के देता था, मैं अपने बाप के सामने ये भी किया करती थी और वो भी किया करती थी। ना शुक्री बीवी। आप पूरी जिंदगी लगा के उसके सारे नाज नखरे उठाएं, लेकिन फिर भी क्या कहेगी छोटी सी बात पे, कि दो भी इस घर च आई सुख नहीं देखे, तेरे को आके दुख ही देखे नहीं, हम तो बहुत बड़े घर में रहते थे, तेरे घर च आई है खोड च वड़ के मैं जलील हो गई हूं। ये ना शुक्री बीवी है, इसके बतन से पैदा होने वाली औलाद ना शुक्री होगी। और फिर बहू न शुक्री। बाप बेचारा पूरी जिंदगी लगा के एक घर बनाता है। कभी सोचा है हमने, वैसे पहले हम घर में माशाल्लाह इकट्ठे रह रहे होते हैं, भाई भी बहनें भी हैं, उस एक घर में, क्यों अजी साहब, उस एक घर में 10-10 जी रहते हैं, गुजारा होता है, 15-15 जी रहते हैं, गुजारा होता है। बहनें अपने घरों में चली गई, अब उस घर में एक बहू साहिबा आई है, दो भाइयों की शादी नहीं होती, उसी घर में दीवारें खड़ी होती हैं कि नहीं होती? होती है कि नहीं? कभी सोचा क्यों होती हैं? ये एक हजरत साहिबा आई है, बस वेली रन परौने जोगी हैं। अब तो इनसे परौने भी नहीं संभाले जाते, आप अंदाजा लगाएं। चलो कम से कम कोई मेहमान आए तो बनाओ सिंगार करके उसको ही संभाल ले, अब तो यह भी काम नहीं होता। जदीद मुआशरा, ऐसे सैंपल आने बंद हो गए। पूरी जिंदगी लगा के मां बाप घर बनाते हैं और ये कहती है जी, प्यो पूछने वाला कौन होता है जी, तेरा भाई दखल अंदाजी करने वाला कौन होता है, तेरी मां दखल अंदाजी करने वाली कौन होती है। और फिर उस घर के अंदर दीवारें खड़ी हैं, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है। एक घर के अंदर दीवारें खड़ी करके जब नशुक्री होती है, फिर क्या होता है, जिस घर के मालिक थे आज सारे भाई किराए पे धक्के खा रहे। इसका घर जी नूरपुरा में है, उसका घर जी सितारा गोल्ड में है, इसका घर जी मोहम्मदाबाद में है। बाप था एक छत के नीचे,
15 जी रहते थे, ये एक हजरत साहबा तशरीफ लाई हैं, पूरा घर बिखर गया। वजह क्या है? न शुक्री की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से औरत बाहर निकली, पूछा बेटा इस्माइल कहां है? अब्बू जी शिकार पे गए। घर में गुजर बसर कैसा होता है? की गुजर बसर, भुखे नमाने, खान नु कुछ नहीं, पीन नु कुछ नहीं, मैं तो मर गई, जो जिस घर चाहिए सुख वेख्या ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ जुमला कहा, बेटा बताना इस्माइल को तेरा बाप आया था, और उसे फिर कहना, उसे कहना कि जाते हुए कह गए थे कि अपने घर की चौखट बदल ले। घर की क्या बदल ले? चौखट बदल ले। दुआ की थी ना अल्लाह से, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में किसको पैदा करना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा घर की चौखट बदल ले। इस्माइल इस्लाम घर आए, अब चंगे पुत्र की निशानी भी होती है। घर आए तो पूछा नहीं कौन आया था, कहा अबू जी की खुशबू आ रही है। अबू जी की इतने प्यो घर आ जाए तो मौत पै जाती, मौत नौजवानों को। ले हुण मां मेरे को रहन आ गई है, प्यो मेरे को रहन आ गया। वजह क्या है? सब कुछ औलाद को दे दिया। मैंने पीछे जो मैं कहा था ना, विरासत तकसीम ना करें, औलाद ज्यादा तंग करे, घर से निकाले, जा अपना कमा के ला, मेरा घर है, मैंने बनाया है, मैं जहां मर्जी लगाऊं, तू कौन होता है मशवरे देने वाला? इस बाप के साथ फिर पूरी जिंदगी यही होगा जो हर कुछ अपनी जिंदगी में औलाद को दे दे। इस्माइल इस्लाम आए, अब्बू की खुशबू आ रही, कहने लगा हाँ जी बाबा जी आए थे और कह रहे थे कि घर की चौखट बदल ले। कहने लगे ओ पागल है, ओ बीबी वो मेरा बाप था, मुझे जाते हुए कह गया है, न शुक्री औरत है घर में इसको तलाक दे के नई बीवी लेकर गया। न शुक्री बीवियों के पेड़ से अच्छी औलाद नहीं पैदा हुआ। दूसरी शादी की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए, वक्त गुजरा, आगे दरवाजा खटखटाया, औरत बाहर निकली, बाबा जी अंदर आए। नहीं नहीं बेटा कोई, इस्माइल किधर है जी? घर नहीं है। बेटा घर में कैसा चल रहा है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, जमजम का पानी पी लेते हैं, शिकार आता है गोश्त खा लेते हैं, अल्लाह ने सारी नेमतें तो हमारे घर में दे दी हैं। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे बेटा आए, उसे कहना तेरा बाप आया था, बुजुर्ग आए थे और जाते हुए पैगाम दे गए हैं, इस चौखट को नहीं बदलना। ये शुक्र करने वाली औरत है, इसी औरत के पेट से 5000 साल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। शुक्र होगा घर में। आज ये बाप कौन होता है पूछने वाला? ऐसी की तैसी तेरी, ये बाप कह रहा है तलाक दे, ये कौन कह रहा है जी? कौन कह रहा है जी? वो नहीं बीबियां सुन रही हैं, कौन कह रहा है जी? बाप कह रहा है। ये भी डर के कहते पैने हैं, घर जाके ये भी इन्हें सानू हिसाब देना पै जाए, मौलवी के सामने बैठ के तुसी कहन डे सीधा, कोई मसला नहीं, ये भी हमें डर लगता है। अब बाप कह रहा है, दखल अंदाजी देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तलाक दे इसे। न शुक्री औरत घर में फूल डालेगी, तेरे घर को बर्बाद कर देगी। तो ऐसी औरतें मार्केट में आना क्या होगी जी? बहनों की न शुक्री देख लें, बहनों के घरों में रहमत क्यों नहीं है? ईदें भेजे, शबराते भेजे, खुशी पे जाएं, गमी पे जाएं, बहन आएगी साडे भरावां ने किसी हाल नहीं पूछे। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, टाइम हो गया है। एक आखिरी वाकया, ये भी अबू दहदा है रज़ी अल्लाह ताला। आने वाला सहाबी आता है, हुजूर ये जो साथ वाला है ना मेरा, इसका एक दरख्त है जो मेरे घर में आता है, मेरे बच्चे छोटे, फल गिरता है वो खा लेते हैं, मुंह से निकाल लेता है, हुजूर इसकी मिन्नत समाजत करें, ये दरख्त मुझे दे दे। अल्लाह के नबी ने बुलाया, कहा यार ये दरख्त जो है ना तेरा दूसरे की तरफ जाता है, इसे बेच दे, फरोख्त कर दे। कहता नहीं बेचना। हुजूर ने फरमाया इस तरह कर, ये मुझे तोहफा दे दे, क़यामत का दिन होगा जन्नत की खजूरें ले लेना। आगे से कहने लगा जी नहीं मैंने तोहफा भी नहीं देना। अल्लाह अकबर। सहाबी उठा और चला गया। अबू दहदा बैठे थे, कहने लगे हुजूर ये सिर्फ उसके लिए है, अगर कोई दूसरा ले दे तो उसके लिए भी जन्नत की खजूरें हैं। हुजूर ने फरमाया अबू दहदा उसके लिए भी जन्नत की खजूरें हैं। अब आप देखें देता कौन है जी? अल्लाह। अल्लाह को खुश करने के लिए किया करें यार, लड़ाइयां झगड़े फसाद, इसने ऐसे कर दिया तो मैंने ऐसे कर दिया, छोड़े इस बात को, दिलों से मुनाफिकत हसद को निकाले, मोहब्बत देखे। अबू दादा उठे, सहाबी के पीछे गए और जाके कहा यार खजूर दे दे। कहने लगा नहीं देनी। कहने लगे इस मदीने में 600 खजूरों का मेरा बाग। कितनी खजूरों का? 600 खजूरों का बाग है, वो ले ले, एक खजूर मुझे दे दे, मैंने हुजूर को तोहफा करनी है। कहने लगा ठीक है। 600 खजूरों का बाग दिया,
बाग के दरवाजे पर गए, सही हदीस पूरा वाकया पढ़े, कभी आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। उखरुजी या उम्मा दहदा, बाग के अंदर नहीं गए, दरवाजे पे खड़े, उखरुजी, और मेरी बीवी बाहर निकल, या उम्मा दहदा बाहर निकल। बीवी आई, खैरियत तो है? कहने लगे हाँ सौदा कर लिया। किस बात का? कहने लगे मैंने जन्नत की खजूर के बदले 600 खजूरों का बाग हुजूर को दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से बीवी होंगी साडे वर्गी है, साड़ियां बीवियां वर्गी, घर जाके पता लग जाए ना मसीते अज ए कुछ दे आया, तुहानू पता नहीं की मौलवी की गल्लां च लभ जांदा। अगर औरत दे के चली जाए, कोई एक आदि बाली उतार के अंगूठी उतार के घर जाके बंदा क्लास ला लेंदा है, और मौलवी भैन जी गल्लां करन दिया सी, तेनू पता नहीं की हो गया। दो तरफा मसला है। बीवी क्या कहने लगी, जुमला सुनिएगा, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह अबू दादा तूने इतना अच्छा सौदा कर लिया, जन्नत हम पे वाजिब हो गई। अल्लाह। बीवी बाहर निकली, बच्चे बाहर लिए, तो बच्चों की जेब में खजूरें थी। क्या थी? अबू दादा ने हाथ मार के खजूरें निकाली, बाग में फेंकी, हुजूर की बारगाह में आ गए। कहने लगे हुजूर सौदा हो गया, वो खजूर आपको तोहफा दे दी, 600 उसको दे दी। मेरा नबी मुस्कुरा पड़ा। मेरा नबी, हुजूर अगर मुस्कुरा पड़े तो समझो कि जन्नत है। मेरा नबी मुस्कुरा पड़ा। हुजूर ने फरमाया अबू दादा एक खजूर की बात की थी ना मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने खजूरों की? एक खजूर की। अबू दादा तूने खजूरों का बाग दिया है, अल्लाह ने जन्नत में तेरा खजूरों का बाग लगा दिया। अल्लाह। अगले जुमले बड़े प्यारे। अबू दादा फौत हो गए, जनाजा उठा, हुजूर पीछे पीछे, हुजूर की आंखों में आंसू, कब्र में उतारा, हुजूर मुस्कुराना शुरू हो गए। सहाबा ने पूछा हुजूर खैरियत तो है? कहा मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, जन्नत में खजूरों ने, खजूरों के दरख्तों ने अबू दहदा पर साया किया हुआ है। अल्लाह। बीवी शुक्र वाली थी कि नहीं थी? अब मेरे भाई शुक्र करोगे, अल्लाह घरों में क्या करेगा जी? मां को समझाएं, बेटी को समझाएं, बहन को समझाएं, बहू को समझाएं, बच्चों को समझाएं, अपने मुलाजमों को समझाएं। शुक्र करना है बेटा। वो शुक्र किस भी हाल में हो, वो मस्जिद में हो, वो घर में हो, वो गली में हो, वो मोहल्ले में हो, वो खानदान में हो, शुक्र करेंगे अल्लाह और देगा, ना शुक्री करेंगे अल्लाह पहला भी खोलेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कहा जे और मेरा रिज़्क जड़ा ना घटा दे। हिकायत है, मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह से कहा अल्लाह मियां क्या रिज़्क घटा दे? फरमाया नहीं, इस बंदे का नहीं, मैं देना अगे खर्च कर दूंगा। शुक्र करता है। एक दूसरा बंदा अल्लाह ने कहा जी मैनू बहुत ज्यादा रिज़्क दे, जाके गलबात की तो फरमाया नहीं, इन्हें शुक्री करता है। आके दसिया यार तू शुक्र किया कर, तू करता ना शुक्री ता करके तेरे को रिज़्क नहीं। वो कहने लगा शुक्र किस गल दा? एक धोती पाई फिरना होर है कि हवा आई धोती भी उड़ा के ले गई। जब तूने शुक्री करेगा तो फिर इस काबिल भी नहीं रहेगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।